بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ دو صوبوں میں انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ پنجاب میں 30 اپریل کی تاریخ دی جا چکی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا صدر مملکت کو، جس میں 30 سے 7 اپریل کی تاریخ تجویز کی گئی۔ اس کے بعد صدر مملکت نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں 30 اپریل کو انتخابات ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گورنر خیبر پختونخوا کو مراسلہ جاری کر دیا ہے اور اس معاملے بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان دونوں صوبوں کے اندر اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہوئیں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین مرکز میں جو حکومت میں شامل تھے، اور جب مرکز میں ان کی حکومت ختم ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو اس کے بعد انہوں نے موجودہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے اس کے خلاف ایک تحریک شروع کی اور مسلسل اس بات پر اصرار کرتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے۔ حکومت یہ کہتی رہی کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ دو صوبوں کے اندر انہوں نے خود ہی بغیر کسی وجہ کے، صرف اس بنیاد پہ کہ شاید وہ وفاقی حکومت پر دباؤ ڈال سکیں گے، اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ لیکن بہرحال مرکز میں تو حکومت اس بات پہ قائم رہی کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ لیکن اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو انتخابات ہیں اس کی صورتحال اب سامنے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو وزارت خزانہ ہے وہ یہ کہتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی، ظاہر ہے اس کو وسائل بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، انہوں نے وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا ہے، انتخابات پر مجموعی طور پر 47 ارب روپے لگتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے جب اسمبلیاں دو تحلیل ہوئی ہیں تو اس پہ اب اضافی اخراجات آئیں گے اور کہا یہ 61 ارب روپے تک خرچ ہوں گے۔ تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک تاریخ پر متفق ہو جاتی، حکومت بھی، اپوزیشن بھی، اور قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے بھی انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوتے۔ اور یہ بات اگر ہم پھر ریورس پہ جائیں تو اگر دو صوبوں میں اس وقت ظاہر تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت تھی، تحریک انصاف کی اگر حکومت ہوتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، تحریک انصاف نے خود ہی اپنی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ الیکشن بھی آئینی تقاضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو مردم شماری کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، وہ بھی ایک آئینی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں بھی ایک آئینی تقاضا ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمیشہ سے پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو بھی جیتتا ہے وہ تو پرسکون رہتا ہے، لیکن اپوزیشن میں جانے والی جماعت ہمیشہ ان انتخابات پر سوال اٹھاتی ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ پہلے انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں اور اس کے بعد تمام ملک انتخابات میں چلا جاتا، تاکہ پھر ایک دوسرے پر الزامات نہ لگتے اور ملک استحکام کی طرف بڑھتا، کیونکہ اس وقت معاشی عدم استحکام کا ہمیں سامنا ہے۔ تو ان ساری جو صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عوام پارٹی سے محترمہ سمر ہارون بلور۔ سمر صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما لال چند ملہی۔ لال چند صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں قیصر شیخ صاحب بھی جوائن کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز ہم اپوزیشن سے کریں گے۔ لال چند ملہی صاحب، یہ کیا قابل قبول ہوگا کہ انتخابی اصلاحات بھی نہیں ہوئیں اور ہمیشہ سے آپ لوگ بھی دھاندلی کرتے رہے، آواز اٹھاتے رہے، آپ الیکشن ہارے تو آپ نے دھاندلی کی آواز اٹھائی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ایسے انتخابی اصلاحات کی طرف تو جانا تھا کہ جس پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے، تو کیا جو نتائج آئیں گے پھر الیکشن کے وہ قابل قبول ہوں گے سب کے لیے؟ جاوید اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں جو انتخابات کا جو عمل ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کا آئین 1973 میں بنا، اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن ایسا کوئی انتخاب کا نہیں کرا سکی جو ڈسپیوٹیڈ نہ رہا ہو۔ ہاں، اس میں یہ ہر دنیا میں کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد ڈسپیوٹس ارائز ہوتے ہیں، وہ دنیا کے جو موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ ایشوز آتے ہیں، لہذا اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں بہت زیادہ سیریس تھی، اور اس نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک بل پاس کیا، انہوں نے اوورسیز کے ووٹنگ کو رائٹ دینے کا بل پاس کیا،
لیکن جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی ایم کی حکومت وہ اس آئیڈیا سے خوش نہیں تھی، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ آج کل یہ سینسس کا جو آپ نے ذکر کیا، پورے ملک میں سینسس تو کرایا جا رہا ہے ڈیجیٹل، لیکن ووٹنگ ڈیجیٹل کرانے سے یہ اس لیے انکاری تھے کہ وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوگی۔ اگر ووٹنگ ایکوریٹ نہیں ہو سکتی تو یہ جو 22 کروڑ لوگ کیسے گنے جائیں گے ڈیجیٹل مردم شماری میں؟ تو لہٰذا اس حکومت نے، موجودہ حکومت ہے، اس نے ان بلز کو ریورس کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور یہ حکومت یہ ارادہ نہیں رکھتی کہ وہ ایک الیکشن سے کرائے جو صاف اور شفاف ہو، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس ملک کے آگے جانے کے لیے اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان میں اس کی حکومت ہو جس کو ایک عوامی سپورٹ ہو۔ بغیر عوامی سپورٹ کے اکیلے اس ملک کو کوئی بھی اس پورے کرائسس سے نہیں نکال سکتا۔ اور اسی سلسلے میں آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنی ایک بڑے جگر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو حالانکہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو جسمانی طرح سے پاکستان کی عوام سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے خاطر ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا تاکہ یہ ملک آگے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اتنے کنسرنس ہیں کہ دو صوبوں میں اگر ایک حکومت ہوگی اور فیڈرل الیکشنز کیسے ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے، سو لہٰذا یہ 60% جو ہے پاکستان اس میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اپریل کے مہینے میں یا مئی کے فرسٹ ویک میں۔ سو لہٰذا انہوں نے پھر ایک دفعہ اپیل کی ہے، کہا ہے موجودہ حکومت کو کہ وہ اپنی ضد اور انا چھوڑ دیں اور وہ آئیں اور پورے پاکستان میں الیکشنز کا اعلان کریں۔ اچھا سمر صاحبہ، لیکن حکومت کیوں یہ چاہے گی کہ الیکشن صاف اور شفاف؟ آپ لوگ بھی تو ہمیشہ سے سوال اٹھاتے رہے ہیں الیکشن کے شفاف انتخابات کے حوالے سے۔ جاوید صاحب دیکھیں، اگر خان صاحب چاہتے تھے کہ الیکشن ہوں تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو حکومتی الائنس ہے یا جو پاکستان کی بیشتر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے کافی مواقع پہ ان کو دعوت دی ہے۔ ابھی موسٹ ریسنٹلی پشاور میں ایک ایکٹ آف ٹیررزم ہوا ہے پولیس لائنز میں، جس پہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو کے بیٹھی ہیں سوائے ان کی پارٹی کی۔ تو دیکھیں، الیکشن کرانے کے لیے تو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے، آئی تھنک پنجاب کی ڈیٹ آ گئی ہے، اور خیبر پختونخوا کی ایک آدھ دن میں، مے بی نیکسٹ ویک میں خیبر پختونخوا کی بھی ڈیٹ آ جائے گی۔ لیکن الیکشن کا رزلٹ اگر خان صاحب کی مرضی کا نہ ہوا یا الیکشن کی رزلٹ دوسرے سائڈ کی مرضی کا نہ ہوا تو اس کے بعد یہ پھر 5 سال ہم سڑکوں پہ گھسیٹتے رہیں گے عوام کو۔ عوام تھک گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آج خان صاحب نے اپنی کچھ ایک ایکٹیویٹی کی تھی، لوگوں سے کوئی خطاب کہ تو ریپیٹڈ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر میں آج دیکھ رہی تھی بہت کم کراؤڈ بیٹھ کے باتیں سن رہا تھا، ہر کوئی سمیتے آپ، سمیتے میں، ہمارے خاندان، ہمارے بچے آج کل سروائیول کی سٹرگل میں بزی ہیں۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا 30% پاکستان فلڈ سے اس دفعہ افیکٹ ہوا تھا، ان لوگوں کے ابھی تک گھر نہیں بنے، ان کے اوپر یہ مہینہ کیسے آئے گا، وہ گرمی کیسے گزاریں گے، سردیاں تو انہوں نے جیسے تیسے کاٹ لی۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے یا جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے یا جو ہمارے ٹیلی ویژن سکرینز کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے، وہ باتیں نہیں کر رہی، کیونکہ ہماری یہ جو پولیٹیکل رسہ کشی ہے، ہم الیکشن ہو جاتے ہیں، ہم سارے پارٹیسپیٹ بھی کر لیں گے، اس کے بعد کیا؟ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں پہلے بیٹھیں، کچھ طے کریں، اور الیکشن کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو الیکشن کی ترامیم ہے، دونوں سائیڈوں پہ کچھ تحفظات ہیں، کچھ حلقہ بندیوں پہ تحفظات ہیں۔ کراچی میں ابھی الیکشنز ہوئے ہیں تو خان صاحب اور ان کی جماعت ان الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، تو مطلب یہ سارے ہم اربوں روپے لگاتے رہیں گے اور ملک اس طرح الیکشن میں جاتا رہے گا، ہماری سیکیورٹی فورسز اپنی جان داؤ پہ لگاتی رہیں گی، عوام کی جان داؤ پہ لگتی رہے گی، اور پھر وہ رزلٹ کو آپ ردی کی طرح ٹوکری میں پھینک دیں، تو دس از ناٹ دا وے فارورڈ۔ دا وے فارورڈ از کہ ہم سارے بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، ڈیٹیلڈ باتیں کریں، اور اس کے بعد پھر ہم الیکشن کی، کوئی الیکشن سے بھاگ نہیں رہا، ہم سب الیکشن چاہتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی ایک سٹیبل مینڈیٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنا مینیفیسٹو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر نافذ کرے، اور یہ جو ساتھ میں بیچ میں اتنی زیادہ انٹرفیئرنس کورٹس کی ہے کہ اب تو کوئی کاغذ اور پیپر
उठाने को भी नज़दीक जाता है तो इधर मुड़ के देखता है कि जी कहीं कोर्ट से तो इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं आ जाएगा, तो हर किसी के लिए बेहतर होगा। लेकिन पहले कुछ ना कुछ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोई तरीक़ेकार, कोई वे फॉरवर्ड बनाना चाहिए। प्लस कल तो खान साहब ने भी ये बात की थी कि अगर सारे इलेक्शन एक दिन पे हों तो पैसों की बचत होगी। हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, हम झोली फैलाए हुए आलमी इदारों के सामने, दोस्त ममालिक के सामने, हमारी जो टॉप लीडरशिप है मुल्क की वो कर्जे मांगने में लगी हुई है, और हम यहाँ पे इतनी बेदर्दी से पैसों का ज़िया में लगे हुए हैं, तो ये भी हम कितना एक नॉन सीरियस इमेज प्रेजेंट करें अपनी मुल्क का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शेख साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं, और सवाल हम यहाँ पे ये उठा रहे हैं कि इंतखाबात की बात तो हो रही है, और आज फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तमाम के तमाम इंतखाबात एक साथ हों, लेकिन इंतखाबात में तो चले जाएं, लेकिन उन इंतखाबी इस्लाहात का फिर क्या किया जाए जिस पे अभी बात ही नहीं हो सकी, जो हो ही नहीं सके, और फिर हम इस तरह के इलेक्शंस में चले जाएं कि जो भी जीते वो तो ठीक है, लेकिन जो हार जाएगा वो तो फिर धांधली के इल्जामात ही लगाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, अभी मुझे गूंज रही है आवाज़ मेरी। जी ठीक कर देते हैं। मैं आपकी अभी आवाज़ सुन रहा था, मैं जी 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 मैं अभी वो ठीक कर देंगे जी फरमाइए। जी जी मैं सुन रहा था और बड़ी अच्छी बात कर रही थी समर साहबा, और फुली मैं उनसे आगे मैं भी अपने मुसलसल कई प्रोग्रामों में यही बात कर चुका हूँ कि इलेक्शन तो देखिए ना होना चाहिए, होंगे, लेकिन उसका कोई ना कोई पहले लाया अमल, कोई ना कोई तरीकाकार कोई हम बना लें। अगर वही करना है कि पिछले 10 इलेक्शन हुए, 77 से लेके ना अभी तक 10 इलेक्शन हो चुके हैं। अब आप बताइए 70 में इलेक्शन हुए, हमने पहला तरीकाकार नहीं बनाया, इंतशार था, उससे हमारा मुल्क बहुत बड़ा नुकसान से गुजरे। फिर 77 में इलेक्शन हुए, वो उसका भी यही बात हुआ, इंतशार हो गया, और इलेक्शन के बाद माशाल्लाह लग गया। अब बात तो ये है कि इलेक्शन और उसके बाद जो भी इलेक्शन है, पिछला इलेक्शन 2018 का, मैंने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, मुसलसल में इलेक्शनों में समझता हूँ। इलेक्शन तो लड़ने से कोई पार्टी, हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन ऐसे इलेक्शन हो ना जिनको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको अगर इलेक्शन के बाद किसी ने मानना ही नहीं है तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करते हैं, और हर बार इलेक्शन का रिजल्ट जो होता है वो तस्लीम नहीं किया जाता। कोई पहले तरीकाकार बना ले। एक वक्त था कि हमारे यहाँ टॉवरिंग पर्सनैलिटी लाइक नवाबजादा नसरुल्लाह, उस जैसे लोग थे जो कि सबको बुला के बिठा देते थे। अब हम आपस में एक दूसरे के साथ जो 5 साल पिछले गुजरे हैं असम्बलियों में, पहले 4 साल पीटीआई रही, तो एक क्या हुआ वहाँ पे, किताबें मारी गई, चोर डाकू कहा गया, तो उससे इलेक्शन का कोई माहौल तो नहीं बनता, दुश्मनियाँ बढ़ गई। और इससे पहले अगर हम इलेक्शनों में जाते थे तो इतनी दुश्मनियाँ नहीं होती थी। इलेक्शन उस वक्त भी इख्तलाफ तो होता था तो माने नहीं जाते थे, लेकिन ये दिन ब दिन हर इलेक्शन में और बढ़ रहा है। तो अब हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं ना जी। हमारे मुल्क में जो इस वक्त मईशत के हालात हैं, यानी 57 साल से जावेद मैं बिजनेस में हूँ, मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में, हमने कभी सुना भी नहीं कि ये हालात हो जाएंगे कि हमारे रॉ मटेरियल की पैसे हमारे पास हैं, हम पैसे देना चाह रहे हैं, एडवांस देना चाह रहे हैं, जितने मर्जी हमसे ले लें, लेकिन कोई कम से कम मटेरियल मंगाने तो दे। अगर मटेरियल आएगा ही नहीं, और अगर जो आए हुए हैं कंटेनर वो पोर्ट से क्लियर ही नहीं होंगे, तो तमाम मतलब दालों के कंटेनर आए हुए थे, दवाइयों के कंटेनर आए हुए, उसके अलावा रॉ मटेरियल जो है वो नहीं आएगा, तो सारी आपकी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी, और इसके साथ बेरोजगारी हो जाएगी। लॉलेसनेस तो पहले ही है। तो इन मामलात पे मैं समझता हूँ इमरान खान साहब भी सीनियर एलिमेंट के साथ बैठ के ये फैसला करेंगे वो अपने आप में कि अगर एक अलग अलग इलेक्शन होने हैं, अभी हम इलेक्शन कराएंगे, यहाँ पे भी 2 महीने हम आपस में झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहेंगे, फिर आगे इलेक्शन नेशनल असेंबली के होने हैं, तब भी हम एक दूसरे और ज्यादा इख्तलाफ कर लेंगे। तो कोई लाया अमल बड़ा आसान सी बात है। मेरी 12 मई को ना तकरीर है असेंबली में, 25 मिनट, ये रिकॉर्डेड तकरीर है, आप चेक कर लीजिए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारा मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे है,
یعنی مریض، اور آپ اب اس مریض کی شادی کی تاریخیں یا الیکشن کی ڈیٹیں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مریض کو پہلے تندرست کر لیں، بچا لیں، شادی بھی کریں گے ضرور ہوگی، یا اس کا الیکشن بھی ہو۔ الیکشن کے بغیر تو دیکھیے کوئی نہ ہمارے آئین میں نہ اور کوئی لائے عمل ہے، لیکن یہ کہاں کس نے الیکشن جب ماننا ہی نہیں ہے۔ اب کراچی میں الیکشن ہوئے، میں کراچی میں ہی رہتا ہوں، آپ دیکھیے ایک تو لوگ اتنے زیادہ متنفر ہو گئے ہیں کہ آپ یہ بلدیاتی کے الیکشن جو ہوئے ان میں کل 10-12% ٹوٹل ٹرن اپ ہوئی۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ایک پارٹی کو کہتی ہے جی ہم 2/3 میجارٹی لے لیں گے، ہم 3/4 لے لیں گے، ہم بڑے پاپولر ہیں، اور لوگ تو آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ 5-10 منٹ کوئی میوزیکل کا پروگرام شام کا کریں تو لوگ آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں تو حالات بہتر تھے، یہ آپ کے دور میں حالات خراب ہوئے ہیں۔ یہ جاوید میں تمہیں بتاؤں، عمران خان ایک آسان سی بات کسی بھی پی ٹی آئی والے سے پوچھ لیجئے، اگر وہ اس کا جواب دے دینا تو میں ان کی بات تسلیم کر لوں۔ مثلا رضا باکر صاحب جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، انہوں نے آج سے 2 سال پہلے 3 ارب ڈالر، آج ہمارے پاس آپ دیکھیے ہم $100 ملین کے لیے یا $500 ملین کے لیے ہر ایک ملک کی محنتیں کر رہے ہیں۔ 3 ارب ڈالر جو ہے وہ 100 سے 150 امیر لوگوں کو 0% انٹرسٹ پہ دے دیے، یہ ابھی ہوا ہے۔ یہ آپ، اور وہ جو سارا سامان ہے، میں کیونکہ بزنس سے میرا تعلق ہے، میں آپ کو اتھینٹک بات کر رہا ہوں، میرے ہی جاننے والوں نے، میرے ہی تعلق والوں نے جب وہ منگائی ہیں نا ایئر جیٹ کی مشینیں منگائی ہیں، تو ایئر جیٹ وہاں وہ پیٹیوں میں بند پڑی ہے، ایک طرف ہمیں ڈالروں کی ضرورت ہے، وہ مفت بانٹ دیے 0%۔ کو جواب ہے کہ بے شک کنکریٹ مجھے جواب تو چاہیے اس کا، میں ہر پروگرام میں کہہ چکا ہوں۔ تو 3 ارب ڈالر آج ہمارے پاس ہوتے اور ہم فری میں 150 امیر لوگوں کو اگر آپ نے دینا ہی تھا تو 0% پہ دے رہے تھے انٹرسٹ پہ، تو آپ ایس ایم ایز کو دیتے، درمیانے اور چھوٹے لوگوں کو دیتے، تاکہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی، کچھ فروغ ہوتا آپ کی اکانومی کا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہمارے یہ سارے فیصلے اس طرح کے ہم کرتے ہیں، اور وہ ذمہ داری ہماری دے رہے ہیں کہ صرف ہم ذمہ دار ہیں۔ جب انہوں نے چھوڑا، دیکھیے 2 ہی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک فزیکل اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی خسارہ جو ہوتا ہے نا، کرنٹ اکاؤنٹ کا انہوں نے جو چھوڑا ہے ہمیں 2022 جون میں، آپ فگر لے لیجئے، فگر تو کوئی بھی لے سکتا ہے، اور اکنامک کوئی غلط فگر تو دی نہیں جا سکتی۔ 4,500 ارب روپے کا فزیکل خسارہ چھوڑا ہے جو بجٹ کا خسارہ ہے، اور انہوں نے 17 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ، اور میں یہ بھی جاوید آپ کو کہہ دوں کہ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی سنبھال لیا، ہمارے یہاں بھی پالیسی ریشنل رہی۔ میں تو پہلے دن سے ہی آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا کہ ایک ڈاکٹر مفتا نہیں، ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھاؤ۔ آپ کے حالات میں 12 مئی کی تقریر کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے حالات اس طرح کے، اور جب تک ہم آپ سب مل کے نہیں بیٹھیں گے نا، جو ٹرمائل ہے اس وقت، نہ تو باہر کا کوئی پیسہ یہاں آ رہا ہے، آ ہی نہیں رہا۔ دنیا کے کسی ملک نے بھی ترقی کی ہے نا، وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، یا اس کو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے، یا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے۔ ہمارے یہاں تینوں چیزیں نہیں، نہ ہم نے باہر کا سرمایہ ہم اٹریکٹ کر سکے۔ ہمارے یہاں کووڈ کم تھا عمران خان صاحب کے دور میں، ان سے پوچھ لیجئے نا کہ کیا ہوا ہے، فگرز آپ کے سامنے ہیں۔ انڈیا میں اس وقت 50 ارب ڈالر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ان کے یہاں کووڈ زیادہ تھا، ہمارے یہاں 1 ارب ڈالر بھی نہیں آتی۔ آپ بتائیے، اس کے بعد ہم نے ہمارے ایس ایم ایز کو، درمیانے اور چھوٹے لوگوں کو، ہم جو ٹوٹل قرضے کا صرف 7% دیتے ہیں اور 93% امیروں کو دیتے ہیں۔ چلیں یہ انڈیا میں لال 15% چند ملی دیتے ہیں۔ صاحب سے ہم اگر پوچھ یہ لیتے ہیں، چیز کیوں ہم نہیں کر رہے، لال چند ملی صاحب، آپ ایک معاشی لحاظ سے آپ اس کو مینج نہیں کر سکے، جو کیسر شیخ صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک تو 0% پہ آپ نے لون دے دیا 200 لوگوں کو، وہ پیسے ضائع ہوئے، پھر آپ نے قرضے لیے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے آپ نے لیے، اور پھر آپ ایک ایسی صورتحال میں چھوڑ گئے ملک کو کہ آپ نے اب ظاہر ہے کہ 2 صوبوں میں، اب یہی الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ویسے تو 47 ارب روپے خرچہ آئے گا، لیکن اگر آپ اسمبلیوں کی تحلیل جو وقت سے پہلے ہوئی ہے وہ 61 ارب روپے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے مس مینج کی ہیں آپ کی سابقہ حکومت نے، اور آپ اس کو مینج کر سکتے تھے، یعنی کچھ سمجھ بوجھ کر کے، سیاسی فہم و فراست استعمال کر کے، لیکن آپ نے اسمبلیاں بھی چھوڑ دیں اور آپ ارلی الیکشن میں ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کو۔ میں پہلی بہن کو بھی جواب دے جاؤں گا، لیکن پہلے جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ جاوید کمل صاحب، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کی عوام کو کیا سیل کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔
ये $3 बिलियन की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कहीं से ढूंढ के लाए हैं। शेख साहब बहुत ही ऑनरेबल एक हमारे कलीग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत गई तो 16.5 पॉइंट समथिंग $1 बिलियन एक फॉरेन रिजर्व्स मौजूद थे, वो आपने वो खर्चे किए और उसकी डकार भी नहीं दी। पता ही नहीं चला कि वो पैसे कहाँ थे, कहाँ से आए थे, और आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो एक एसेट बनाया था, वो आपने कहाँ खर्च किया। जब पेट्रोल आप 30 रुपए महंगा करते हैं तो आप कहते हैं कि ये इमरान खान की वजह से हुआ, और जब उस 30 में से 5 रुपए फिर सस्ता करके आप डार साहब को मुबारकबाद देने लगते हैं। हम नहीं कह रहे, आपकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है वो डिजास्टर साबित हुई हैं, और मिफ्ता इस्माइल रोजाना आके पूरी कौम को बता रहे होते हैं, और IMF जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल जो है ठीक डील कर रहे थे, डार साहब की कैलकुलेशंस ठीक नहीं थी। आपने डॉलर को होल्ड करके रखा, आपने इंपोर्ट पे सब्सिडी दी है। लालचंद साहब, डॉलर इसमें होल्ड इसमें करने थोड़ा का सा मकसद एक ज़िमनी सवाल ले लें कि आप लोगों ने भी IMF के साथ एग्रीमेंट किया और उसको ऑनर नहीं किया। आप लोग जब पता चल गया तहरीक इंसाफ को और साबिक वज़ीर आज़म साहब को कि हुकूमत जा रही है, तो आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बजाय आपने कम कर दी, और वो एक सियासी फैसला आपने किया जाते जाते, जिसकी वजह से मुल्क को एक आप मुश्किल सूरत हाल में छोड़ गए थे। मैं चाहूँगा इसका भी आप जवाब दें। जावेद साहब, मैं समझता हूं सियासतदान सियासी फैसले करते हैं, उनको सियासी फैसले करना चाहिए। सियासत को गाली बना दिया है, वो गाली नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर आवाम को रिलीफ दिया तो ये रिलीफ दे सकते थे, जो उन्होंने देना मुनासिब नहीं समझा। अगर पाकिस्तान ने उसकी प्राइस PTI ने होल्ड की थी पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस, तो उनका एक अल्टरनेट प्लान था कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, जो हमसे, क्योंकि हिंदुस्तान खरीद रहा है, उनको वो सस्ता मिल रहा है, और हमें अमेरिका मना भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद हम खामा का डर के मारे जो है रशिया से कोई डील्स नहीं कर रहे हैं। हम वो डील्स करेंगे। और फिर आपने बाद में देखा कि इन्होंने वही कहा, किया नहीं अभी तक। इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, और आज तक वो ख्वाब बना है, ये उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो वी हैड ए अल्टरनेट प्लान, और हमने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त भी शौकत तरीन और हमारी एक टीम से मिली और उनको कहा कि देखें, इस वक्त ये मुल्क इस तब्दीली का मुतमिल नहीं हो सकता। और उसके बाद देखा कि एक साजिश के तहत एक चेंज हुआ, और उसके बाद लेकिन लालचंद साहब, आप जो है एक आईनी अमल को उस आईनी अमल के दौरान आप इस्टेब्लिशमेंट्स को ये कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, जबकि वो अपने फैसले पे एपॉलिटिकल होने के फैसले पे कायम हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब और आप की बहैसियत जमात आप तनकीद करते रहे इदारों पे। मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन समर हारून साहिबा, इदारों ने जब ये फैसला किया है कि हर इदारा अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहे, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए या उसको तनकीद करनी चाहिए, जो आइन और कानून की हुदूद? डेफिनेटली जी, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक दो इदारे ऐसे हैं जिन्होंने खुद इंट्रोस्पेक्शन करके स्टेप बैक किया है, हम इसको वेलकम करते हैं। और जो माशी बहरान से पाकिस्तान गुज़र रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये भी अपने आप को फाइनेंशियली डाउन साइज करेंगे, कट टू साइज करेंगे, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कम करेंगे। ये सिर्फ अवाम और सियासतदानों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, इस मुश्किल घड़ी में हम सबको कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मईशत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे भाई मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन जब ये लोग बातें करते हैं, जिन मुश्किलात को हम आज माशी तौर पे फेस कर रहे हैं, वो सब इनकी हुकूमत की बनाई गई हैं। इन्होंने पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की, इनकी जैसे वो एक्स अमेरिकन साजिश का एक बयानिया था, अब तो आई थिंक अमेरिकन साजिश भी नहीं रही, वो इम्पोर्टेड साजिश भी नहीं रही। वो जो लोगों ने गाड़ियों पे मुक्के के स्टिकर लगाए हुए थे, अब समझ नहीं आता कि वो किसके खिलाफ वो स्टिकर्स और वो कैंपेन चल रही है। सो इन्होंने पहले IMF के पास जाने में ताखीर की, ठीक है, पूरे मुल्क दुनिया में कोविड की वजह से एक इकोनॉमिक
क्राइसिस असद था, उमर साहब वजीर खजाना जी थे हाँ, शुरू में, उन्होंने उस टाइम अकड़ दिखाई और उन्होंने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर सके, ताखीर के साथ गए, एक मुआहदा ये खुद साइन कर आए, इनकी हुकूमत ने उसकी निगोशिएशन की, उस मायदे को ये खुद तोड़ कर आए, और तोड़कर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए, तो जब अब जो नई हुकूमत इनका वो टूटा हुआ मायदा रिस्टोर कर रही है, तो जब भी बात होती है तो ये सड़कों पे इंतशार फैलाने आ जाते हैं। भाई अपने पैसे कौन एक ऐसे मुल्क में देगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा विजिबल इंस्टेबिलिटी हो, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है। जब भी हमारी किसी ज़रूरी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, देखिए हमारी पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, कैबिनेट में क्या बातें होती है वी आर नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन जो आप सुनते हैं देखते हैं तो जी एक कोई झूठी मूठी जेल भरो तहरीक बन जाती है, एक सारा दिन न्यूज़ चैनल्स को वो न्यूज़ डोमिनेट करती है और रात को हंसते खेलते सब घर चले जाते हैं। क्या हो जाता है, जो पैसों के लिए पाकिस्तान की मईशत डेस्परेट है, वो पैसे फंस जाते हैं, वो पैसे आके हुकूमत या अपोजिशन या मैं या आप तो घर नहीं लेके जाएंगे, वो हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट होगी। और इनकी क्योंकि मुआहदा तोड़ने के बाद अब वो इतनी सख्ती कर रहे हैं कि वो कहते हैं यकमुश आप लोग सारी चीज़ें इकट्ठी करें, पेट्रोल की प्राइसेस भी महंगी करें, बैंकिंग रेट्स भी अपने बदलें, अवाम पे भी बर्डन डालें, रिच पे भी डालें, पुअर पे भी डाल रहे, सैलरी क्लास पे भी डालें। तो ये सारा एक महंगाई का, एक तकालीफ का एक तूफान कौम को फेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हम सबको फेस करना पड़ेगा। अगेन मैं कहती हूँ, हम कैसे फेस करेंगे, हम कैसे इसके ऊपर डील करेंगे जब हम आपस में बैठे ही नहीं हैं। एक मुश्किल फैसला है, हम सब प्राइवेटली मानते हैं कि वो ज़रूरी है, लेकिन हम सियासत इतनी सस्ती हो गई है और मुल्क हमारा इतना बेचारा हल्का हो गया है कि हम सियासत की खातिर इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिनको हम सारे ओन करें। आज पीडीएम की हुकूमत है, कल इनकी हुकूमत होगी, परसों किसी और की होगी, तो ये मुश्किल सियासी जो माशी फैसले हैं, सियासी फैसले हैं, हर हुकूमत ने करने होंगे, लेकिन बेहतर ये है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप कराया जाए और सारे लोग जो बॉटम लाइन के फैसले हैं उनको ओन करें, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी में लैकिंग था और उसके नताइज आज हम सारे भुगत रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले कर लिए जाते हैं कंसल्टेशन के बगैर। जब तक सारी कौम एक मुश्किल फैसले को ओन नहीं करती, वो फैसला आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं, और उसके लिए एक मजमूई मुशावरत चाहिए। कैसर शेख साहब, ये जो ज़ाहिर है इस वक्त जो हमारी माशी हालत है और जिस तरह से हम डील कर रहे हैं IMF के साथ, और फिर कुछ ज़ाहिर है कुछ गारंटीज़ भी मांग रहे हैं, कुछ यकीन दहानियाँ भी मांग रहे हैं, ये सब कुछ इसका एक पस मंज़र तो है ना, ये बग़ैर पस मंज़र के तो ये सब कुछ नहीं हो रहा कि वो हमें जो है थोड़ा सा हमारा आम भी ट्विस्ट कर रहे हैं, शराइत भी उन्होंने बड़ी सख्त रखी हुई हैं। जी जावेद साहब, देखिए पहला तो मैं ज़रा एक क्लैरिफाई करूँगा कि लालचंद साहब ने कहा कि 16 कुछ रिजर्व थे जब ये गए, हालांकि आप गॉगल्स उठा के आप देख लीजिए 10.8 एग्जैक्ट थे रिजर्व जो जब ये छोड़ के गए। तो गलत फिगर इकोनॉमिक्स में और अपने प्रोग्रामों में देंगे और अपने आप को ये कहेंगे तो अच्छा नहीं है। वो तो आप कोई भी चेक कर सकता है कि एग्जैक्ट रिजर्व हमारे क्या थे जब हमारी हुकूमत आई। दूसरा, समर हारून साहबा ने बड़ी ही अहम बातें की और मैं उनसे फुली एग्री करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ। आपका जो सवाल है ना, देखिए बिल्कुल IMF हमारा हाथ मरोड़ रही है। बात ये है कि हम पहले अपने आप को पूरी उनके सामने हमें पूरी क्लियर पिक्चर देनी चाहिए। उनपे खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनको हम पे एतबार नहीं रहा। हमने कुछ ये इन्होंने जो PTI ने जो मुआहदा किया उस मुआहदे पे अमल नहीं किया। खुद से तो इन्होंने ये पेट्रोलियम लेवी का उनसे एग्रीमेंट किया और फिर उससे हट गए। इससे पहले भी हो चुका है, पिछले भी, क्योंकि हमारे कोई एक प्रोग्राम नहीं, हम तो 22-23 प्रोग्रामों में जा चुके हैं IMF के। तो हमें जो भी पिक्चर है ना, अगर हमारी कहीं कोई खराबी निकल आती है तो उसको भूलते नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो अभी इस वक्त वो हमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हमारा आर्म ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको अपनी पूरी पिक्चर देनी चाहिए, अपनी सिंसियरिटी बतानी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हमारा आम आदमी इस तरह पिस रहा है, हमारे यहाँ फ्लड आया हुआ है, उसकी सूरत है। कोई भी सही तरह हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनको कन्विंस करें। देखिए, ना तो हम बिल्कुल IMF की हर बात मानने की पोजीशन में हैं और ना हम ये कर सकते हैं कि जो है हमारी आवाम जो है वो बिल्कुल उसको हम उसके ऊपर सारी लेवी लगा दें। और
बाकी ये कहें कि अगर बिजली का कोई फर्क है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 3,000 अरब रुपए की बजाय 15 तो 50 अरब वसूल हो रहा है, तो ये काम भी तो नहीं चल सकता ना। हमने अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, जहाँ हमारी खामियां और खराबियां हैं उसको ठीक करेंगे तो तभी। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ही 22-23 प्रोग्रामों में जा चुका है, दूसरे मुल्क तो नहीं जाते इतने प्रोग्रामों में, हम उनको फुलफिल भी इतने 6 महीने से ये चल रहा है प्रोग्राम। हम अगर इसको पहले इसका कोई फैसला कर लेते या कोई नतीजे पे पहुंच जाते तो आज तो हमारी हालत बड़ी दिगरगू हो गई और हर हफ्ता हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है। तो जिस तरह महंगाई का जो आलम हो रहा है और जिस तरह हमारी इंपोर्ट रुकी पड़ी है और जिस तरह ये मैंने पहले एक्सप्लेन आपसे किया, तो बैठ के ना IMF को कन्विंस करना पड़ेगा। हमारी टीम को बड़ा होना चाहिए, वादे टीम को ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स हमारे उनके साथ जाएं जिनके ऊपर लोगों को वो समझते हैं कि कोई ना कोई बिजनेस कम्युनिटी को फेथ है, जो लोगों को जो IMF को कन्विंस कर सकते हैं और जो जिनका पास रिकॉर्ड ऐसा है कि IMF उन पे ज्यादा उन पे कॉन्फिडेंस कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो कही ना समर हारून ने, हम तमाम पार्टियों को, तमाम पाकिस्तानी हैं, तमाम पार्टियों को जब तक हम ये पॉलिटिकल टर्माइल को ख़त्म नहीं करेंगे ना, हमारे हालात मुश्किल में रहेंगे। हमको इस वक्त समझना चाहिए संजीदा है। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को लिख के व्हाट्सअप किया है कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त ब्लीड कर रहा है और हमारा मुल्क इस वक्त मेल्ट कर रहा है, हम हालात बहुत ख़राब हैं। और अगर इस वक्त भी हम संजीदा ना हुए, इस वक्त भी हमने ये ख्याल ना किया कि हाउ टू फाइंड सम सोल्यूशन, एमिकेबल सोल्यूशन इवन इन आवर इंटरनल इकॉनमी एज वेल एज विद IMF, तो ये हमें अब तक कर देना चाहिए था। हमसे गलतियां हो रही हैं और मतलब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो ये तो ऐसी बातें अब नहीं रह गई कि हम एक दूसरे के ऊपर भी इल्जाम तराशी करते रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे से समझें कि क्या उनके पास बेहतरी के और लोगों से, तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, तमाम स्टेक होल्डर से मिल के हम कोई सोल्यूशन निकालें दिन ब दिन। और सिर्फ चंद बंदों का काम नहीं है अबरा, मैं पहले कह चुका हूं कि एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों का बोर्ड इस वक्त बैठेगा, सब मिल के काम करेंगे, हालात बेहतर हो जाए, ताकि कुछ ना कुछ तो हम कंट्रोल में लाए ना। सियासी मुकालमा, बातचीत, ये बहुत ज़रूरी है। चंद साहब, अब मसला ये है कि आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन से बात नहीं करते थे, अब अपोजिशन में हैं तो हुकूमत से बात नहीं करते। बहरहाल हर मसले का हल तो टेबल पे ही निकलता है, बातचीत से ही निकलता है। और जाहिर है कि ये मुल्क सिर्फ इस वक्त की हुकूमत का नहीं है, आप लोगों ने भी इस मुल्क पे हुकूमत की है। 2 सूबों में हुकूमत है, गिलगित बल्दिस्तान उसमें रही, 2 सूबों में गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है। ये मुल्क जितना इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का है उतना आपका बहसीयत ऑपोजिशन भी है, तो आपको भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बैठें आप लोग, बातचीत करें, आगे बढ़ाएं। अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन एक साथ हों तो मामला तो बातचीत से ही आगे बढ़ेगा ना। तो भाई आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात की है लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कैसर शेख साहब ये कहते हैं कि 10.8 बिलियन या डॉलर ही फॉरेन रिजर्व्स थे, तो वो भी कम नहीं थे जिसको उन्होंने गिरा के हमें मुल्क को दिवालिया करने तक ये मौजूदा हुकूमत ले आई है। अब ये मौजूदा हुकूमत, अगर देखें, यही फैसला करना था कि अवाम को निचोड़ना है। ये सारी हुकूमत में जो भी 15-14 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं, इन्होंने नारा तो एक ही लगाया था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी। उस वक्त महंगाई का रेशियो था 13% थी, आज वो 41% है। 41% महंगाई हो गई है और ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। पर जब आप में वो अहलियत ही नहीं थी तो आपको आने की जरूरत क्या थी? आप एक सवाल छोड़ गए थे कि भाई जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आईनी हुआ। मेरी बात छोड़ दे, आप इन सब की, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, जरदारी साहब, सबकी आप क्लिप्स निकाल लें, वो सब आपको बताते हैं कि इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, हेल्प के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस मुल्क में कामयाब नहीं होता। अब आपकी बात, आपने जो बातचीत की बात की है, ये बहुत ही अहम है और हम हमेशा इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है। आप अगले इंतखाबात को अपने एजेंडा में शामिल करें। ये कहते हैं कि नहीं, इक्तदार तो हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे,
चाहे पेट्रोल बढ़ जाए, चाहे डीजल बढ़ जाए, चाहे डॉलर 500 रुपए तक पहुंच जाए, लेकिन हम हक तो हमारा, इक्तदार में तो हम रहेंगे। इलेक्शन की बात हमसे ना करें, जम्मू वो अवाम कैसे के पास इक़्तिदार जाने की छोड़ेंगे? बात ना करें। आप हुकूमत में थे, एक आपकी हुकूमत खत्म मिनट हुई में खत्म करता हूं तो एक इत्तेहादी हुकूमत आ सर, मैं गई, एक तो मिनट जाहिर है खत्म वो हुकूमत तो नहीं सर, मैं एक छोड़ेंगे मिनट ना। सर वो ना छोड़े ना, हम भी तो अब खुद ही छोड़ देंगे ना। आप अगर लोग ना बात कहते छोड़े तो हैं तो कि फिर हम रोना। बातचीत करेंगे, लेकिन आप लोग बात नहीं करते ना लालचंद साहब, बात नहीं करते आप लोग। सर बात आपका अच्छा, इमरान मैं आ खान रहा हूं। साहब तो देखिए कहते हैं एक सुबह कुछ कहते हैं, फिर वो बदल जाते हैं अपनी बात से, फिर आपकी जो जावेद लीडरशिप है जावेद वो उनके सामने बात भी तो नहीं कर जावेद सकती साहब, ना। वो तो यही कहते हैं जावेद कि कोई जावेद बातचीत वाला हो जावेद तो बातचीत आगे बढ़े। जावेद साहब, बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये गुज़िश्ता 8 माह से, आप इसके गवाह हैं, शेख साहब गवाह हैं, ये 8 माह से इनसे जब बातचीत की बात की गई, इलेक्शंस की बात की गई, तो इन्होंने हमें एक ही जवाब दिया। वो ये कहा कि अगर ये बात आपको करनी है तो आप पार्लियामेंट आ जाएं। हमने 8-9 माह पहले इस्तीफे दिए, इन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए, और ये हर टीवी प्रोग्राम में, हर जगह पे, और स्पीकर साहब खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते रहे कि जब तक मेंबरान खुद आके वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे हम ये इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। तो वो भी लेकिन तो जब पाकिस्तान तहरीक मजबूर हो इंसाफ जाते हैं ने ना लाल साहब। जब फैसला किया, हाँ जब लालचंद फैसला साहब, वो किया, भी सर मेरी मजबूर हो बात जाते कंप्लीट हैं। हो जाए, आप जब फैसला किया, आप इस्तीफे सर देते एक मिनट, हैं, एक मिनट खत्म, फिर जावेद आप साहब एक मिनट, जुमला ऐवान खत्म छोड़ होने के दें। चले जाते हैं। वो भी परेशान हैं कि आप इस्तीफे देते हैं, फिर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करते हैं दोबारा उसी ऐवान में आने के लिए। यानी आपने 2 सूबे छोड़ दिए और आप दोबारा उन्हीं ऐवानों में आने के लिए दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी एक्सरसाइज है, लाहासिल एक्सरसाइज है, कि जिसमें फिर जाहिर है जावेद वक्त का भी साहब, ज़िया है, जावेद साहब, वसाइल का आपको भी ज़िया याद है। कराऊं, मैं आता हूं ठहरे, जावेद साहब, आपका पॉइंट लेनी है ना, मैं आता हूं। जावेद साहब आपको याद कराऊं, मैं ये आता हूं, मैं पूरी समर पीडीएम साहिबा की गवर्नमेंट ने कहा ठीक। कि आप केपी और पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करें, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। जब वो डिसॉल्व हुई तो ये इन्होंने यू टर्न नहीं, डब्ल्यू टर्न लिया, ये अपने अच्छा, वादों से मुकर चले गए। ठीक ठीक और समझ एक साहिबा, आखिरी लेकिन बात, अगर ये हम अवामी हालात को इलेक्शन- देखते हैं, हम हालात को देखना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। आज पिछले साल कूचा रिसालदार में वाक़या हुआ, सानेहा हुआ, शहादतें हुई, आज उसको 1 साल हो गया। फिर उसके बाद अभी हालिया पुलिस की मस्जिद में, पुलिस लाइन में धमाका हुआ, उसमें हमारे 100 से ज़ायद पुलिस जवान शहीद हो गए। एक ऐसा माहौल कि जहाँ पे वहाँ भी जो पुलिस चीफ है, जो वहाँ के इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास नफरी की कमी है, हमें लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए हमें लोग चाहिए। ऐसी सूरत हाल में अगर हम ड्रैग कर रहे हैं अपने सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शंस के अंदर, तो ये क्या हम कर रहे हैं? हम लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। हम पुलिस के जो अपने बहादुर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो भाई बहन हैं उनकी जानों को दाव पे लगा रहे हैं। जिस कूचा रिसालदार की धमाके की आपने बात की, उसकी आज पहली बरसी है और अनफॉर्चुनेटली उनके लवाहिकीन आज भी मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का, जो कि उनको नहीं मिल रहा, एक प्रॉपर इंक्वायरी का जो कि उनको नहीं मिल रही, और उनके ज़ख्मों पे इसलिए मलहम सही तरीके से नहीं लगाया गया। तो अगर आप उसकी वीडियो फुटेज देखें तो वहाँ पे सिक्योरिटी पे एक पुलिस एहलकार थे जिन्होंने सुइसाइड बॉम्बर के साथ मुकाबला भी किया और उसमें अपनी शहादत भी दी। तो पुलिस वाले बहुत बहादुरी के साथ कोप कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास नफरी नहीं है। इस हादसे के बाद जो कूचा रिसालदार में हुआ था, आप पेशावर को जानते हैं, आपको पता है कि सिटी के अंदर एरियाज़ बहुत पतली लंबी गलियां हैं। हमने बहुत कोशिश की कि जो हमारी एहले तशी के भाई हैं, उनकी जो मस्जिदें हैं, फिर हमारी जो और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, हम उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उस पर पुलिस की नफरी को इंक्रीज़ कर दे, लेकिन पुलिस के पास नफरी ही नहीं है। ना उनके पास असलहा है, ना उनके पास नफरी है। वो अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उन्होंने कर लिया है, और ये आसान बातें नहीं हैं कि हम अब इलेक्शन करें, फिर उस इलेक्शन के 2 माह बाद इलेक्शन करें। वो पैसे कहाँ से आएंगे? इलेक्शन कमीशन ने बीच में ना मर्दमशुमारी शुरू कर दी है। अब आप मुझे बताएं कि जिसकी कौन से हलके में पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा, कौन से हलके में नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा। अभी तो उस सेंसस की डेली के तौर पे कोई 200 फोनें मुझे आ रही है कि जी हमसे हमारा घर स्किप हो गया, हमारा एड्रेस गलत निकलिया, हम जो एक सेंसस की तो अपनी एक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मतलब एक इतना मुल्क में
इंतशार है और फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की इतनी लहर है, तो मैंने जैसे आपको कहा, जो लोग इन चीज़ों से अफेक्टेड हैं, हम जब उनके सामने जाते हैं ताज़ियत करने, अफसोस करने, तो उनमें बहुत गम नहीं, अब गुस्सा पाया जाता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है और आप लोगों ने यहाँ पे क्या एक सॉरी टू से सर्कस का एक माहौल बनाया हुआ है। तो इंसान को शर्म आ जाती है कि जी हम अपनी इन पोजीशंस पे बैठ के किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हमें इस दर्द का एहसास है कि आप जो महसूस करती हैं, आप खुद शुहदा के घर से हैं, आपके घर शहीद, आप शुहदा के घर से हैं, आपके शौहर गए शहीद हो गए, बशीर बिलोर साहब शहीद हो गए, हारून बिलोर साहब शहीद हो गए। तो हम इस दर्द को समझते हैं कि ऐसे वक्त में हमें बहुत सेंसिबली और बहुत सोच समझ के कुछ फैसले करने चाहिए। देखिए जी, जिनके घरों के चिराग बुझ जाते हैं वो स्टेट की 5 या 10 या 15 लाख की कॉम्पेंसेशन से वापस नहीं आ जाते। और रियासत और हुकूमत का काम ये नहीं है कि आप एक एग्रीव्ड फैमिली के मुंह पे 10 लाख रुपए मार के कहें कि बस अब हम मेरा और आपका हिसाब ख़त्म। वो लोग कौन हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो किन अज़ाइम से हमारे प्यारों की जान लेके चले गए, हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के चले गए, लोगों को जवाब चाहिए। और ये जवाब देने के बजाय, या जो लाइक मैंने आपको कहा, जो ये दहशतगर्दी की सानहों के जो विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको कंसोल करने के अलावा हम इन बातों में उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, उसने मुझे जलसे में 2 गालियां दे दी, मैंने 4 गालियां दे दी, तो लोग हमें किस तरीके से परसीव करेंगे और हमारी संजीदगी को आवाम किस तरीके से परसीव करेगी। ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है। बहुत सही कह रही हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। कैसर शेख साहब, ये जो एक ज़ाहिर है मुल्क को माशी और सिक्योरिटी की एक सूरत हाल दरपेश है, इस पर तो बहुत सोच समझ के हमें फ़ैसले करने चाहिए ताकि सियासत भी बचे, रियासत भी बचे और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। जी जावेद, अल्ताफ, इस वक्त अपनी अनाओं को छोड़ के हम सबको, जितनी भी पार्टीज हैं, सबसे पहले तो हमें अपनी अनाओं को छोड़ना मुल्क के मफाद के लिए, क्योंकि जब सब हम एग्री कर रहे हैं कि मुल्क हमारा नहायत ही तकलीफ दे मराहल से गुजर रहा है, तो इस वक्त तो हम कर लेंगे, पॉलिटिक्स भी कर लेंगे। इस वक्त तो रियासत को बचाने की बात है और हम सबको छोड़ना, एक एक थोड़ा थोड़ा लचक दिखा के अपने आप को, अपने अपने मुतालबात को थोड़ा सा कम करके कोशिश करनी चाहिए, कोई लाहा अमल बने, कोई रास्ता निकले, कोई कंसेंसस बन जाए, किसी कॉमन पॉइंट पे हम आ जाएं जिससे हमारा मुल्क जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाए। इस वक्त तो मैं आपसे कुछ नहीं बता सकता कि जो हालात हैं सब ने बताए, फिगर्स हैं आपके सामने है, महंगाई की क्या चल रही है, बेरोजगारी किस तरह हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, और हमारे कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है। अब हमारे यहाँ तो देखिए ना, वो भी वहाँ भी उसका जो जजमेंट आती है उस पर भी इख्तिलाफ राय हो रहे हैं। हालांकि हमारे इदारों को इसी तरह इलेक्शन कमीशन, तमाम इदारों की हमें इज्जत करें, हम एक दूसरे के साथ कोशिश करें संजीदगी के साथ बैठने की और कोई तलाश करने की, रास्ता तलाश करने। हमें इस वक्त अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, हो सकता है कोई हमारी गलतियां होंगी जो कुछ हुआ है ना, तो हमें बेहतर सोचना चाहिए कि हम लचक पैदा करके दूसरे के करीब आके अपने मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात किसी से ढके छुपे नहीं है, सारी दुनिया में मजाक बना रही है हमारे ऊपर। IMF जो है इतना अरसा हो गया, कोई ना कोई बहाना बन रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मेरा तो कहना है। फैसले करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपका, समर हारून बिलोर साहिबा आपका, और लाल चंद मली साहब ने इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मुल्क हुकूमत का भी है, अपोजिशन का भी है, और ज़ाहिर है अवाम इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। जितना किरदार हुकूमत का होता है उतना ही किरदार अपोजिशन का भी होता है, क्योंकि अपोजिशन भी जिसको हम गवर्नमेंट इन वेटिंग कहते हैं, वो हमेशा से गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। अगर अपोजिशन अपना मस्बत किरदार अदा नहीं करेगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, और इंतखाबात भी ऐसे होने चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।